History of English language. Praveen, read the introduction. The English language is one of the most widely spoken languages in the world. Has a rich and complex history that spans over the 1,500 years. Its evolution reflects the social, political, and cultural changes that have spanned the British Isles and the Middle world. From its Germany root to its global dominance today, English has undergone significant transformation in the vocabulary, grammar, and the pronunciation. So the language English, one of the most spoken language in the world, and it is very rich and it is very complex, and it has a history of around 1500 years. Its evolution reflects social, political, cultural changes that shaped the British Isles and the wider वर्ल्ड. दुनिया पर पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से, राजकीय रूप से कितना बदलाव उठाया, इस सारी चीजों का एक इन्फ्लुएंस और या एक प्रभाव इस इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप होने में भी हुआ. फ्रॉम इट्स जर्मनिक रूट, जर्मनी भाषा से रूट होकर ग्लोबल डोमिनेंस टुडे, आज का इंग्लिश तक, इंग्लिश हैज अंडरगॉन ए सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन. इतना एक बड़ा इतिहास इंग्लिश को भी है. जर्मनी का रूट है उसका और ब्रिटेन का रूट है इसका, ऐसा रूट होकर आज का मॉडर्न इंग्लिश में बदल गया. सो जस्ट लाइक वी हैव डायलेक्ट्स इन हिंदी, in English also we have dialects. The way we speak English, the way I speak English, that is not the way an American is speaking in English. समझ, एक अमेरिका के व्यक्ति की इंग्लिश हमारे इंग्लिश से बहुत फर्क है. They can easily understand an Indian right after we speak English. वो भी they can easily understand मलयाली. भाई सब बातों को इतना जोर देता है, उसका इसका अंदर का पानी दूसरा के चेहरे पर आ जाता है. इतना जोर से बातें करते हैं साउथ इंडिया के लोग. इंग्लिश में भी इतना फर्क है. ओरिजिन ट्रेसिंग बैक टू 450 to 1100. द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश बिगिंस विद द अराइवल ऑफ 3 जर्मनिक ट्राइब. जर्मनी से 3 अलग अलग ट्राइब आने से, क्या क्या है वो? एंगल्स, सैक्सन्स एंड जूट्स. दे केम टू ब्रिटेन अराउंड 5th century AD. जर्मनी से अलग अलग गोत्र ब्रिटेन में 5th century AD में आया. वो गोत्र का नाम These tribes brought with them dialects that formed the basis of old English. वो लोग उनकी जगह छोड़कर when they left their own place and when they came to Britain, they came with their own dialects. उनकी आवाज को लेकर वो लोग आया. सच बताया तो उनकी आवाज मतलब वो क्या बोलता है हमारे लिए तो सिर्फ आवाज ही है. द वे दे स्पीक. कोई लड़की बीच में बात कर रहा है. इधर का समाचार किसी को भेज रहे हो, कोई फर्क नहीं. सो क्या बोल रहा था? ये जर्मनी के जो लोग when they came to Britain, they came with their sounding, their dialects. Then the language was heavily influenced by Latin. आज सुबह हम रूट वर्ड सीखने के लिए कौन सा भाषा के साथ सीखा? So English has also be a big connection with Latin भाषा. Latin भाषा कहाँ भी है? Introduced through the Roman occupation. अभी समझ आया? We have our Indian Christian history has a deep connection with Roman.
Roman occupation and later by Christian missionaries. So पहले उतना झुंड आया था, those tribes already came, and in between we have connection with Latin fellows, Roman fellows. Why? Because missionaries were already spreading. आज सुबह हम कहाँ से शुरू किए थे? Spread the gospel to all the, तब से लेकर ये लोग निकल पड़ा था. Old English was highly inflected language with complex grammar, vocabulary largely derived from Germanic root. पुराना जो इंग्लिश है उसका जड़ कहां से है? जर्मनी. Notable works from this period include Beowulf, which provides valuable insight into English culture. And ये किताब है, वो किताब का नाम वहां लिखा है. वो किताब ये सब कुछ पढ़ने से इंग्लिश का कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास के बारे में और थोड़ा ज्ञान हमको मिलता है. इफ यू स्टडी दोस काइंड ऑफ बुक्स, राइटिंग्स. कहाँ चले गए? हाँ. So we will come to know more about English language. So in the Middle English, that is Old English, English को तीन या चार होगा या पांच होगा. So point number one, very old English. Second, Middle English, और थोड़ा डेवलप हो गया. The Norman conquest of 1066 marked a turning point in the development of English. नॉर्मन जो लोगों का इन्वेशन हुआ और कुछ झुंड लोग आकर और ओला कब्जा करते हुए आगे निकल पड़ा, उनका भाषा का भी इफेक्ट इंग्लिश में आया. वो इंग्लिश में और इंग्लिश भाषा में इट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. द नॉर्मन्स हु स्पोक द डायलेक्ट ऑफ ओल्ड फ्रेंच. इधर हड्रिन और दो एक लड़का लड़की आए थे, याद है? दे स्पीक इन फ्रेंच. And if you so when Normans came, ये जो झुंड आया, they spoke old French, introduced thousands of French words into English. वो लोग आने से बहुत हजारों इंग्लिश शब्दों का, फ्रेंच शब्दों को इंग्लिश में ऐड किया. Particularly areas such as law, government, art and literature. कौन सा एरियाज में इंग्लिश शब्दों का अंदर फ्रेंच शब्दों को मिक्स किया. नियमों में, सरकारी बातों में, आर्ट और लिटरेचर किताबों में इंग्लिश भाषा का अंदर फ्रेंच भाषा के शब्दों को जोड़ दिया. इंग्लिश ग्रामर सिंप्लीफाइड एंड मेनी इन्फ्लेक्शनल एंडिंग्स डिसअपियर. इंग्लिश लैंग्वेज में ये सब बातें आने से इंग्लिश जो भाषा का बहुत सी बातें खो भी चुका है, कुछ नया अच्छा बातें आया भी है. मिडिल इंग्लिश बिकेम मोर स्टैंडर्डाइज्ड स्पेशली आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस बाय विलियम कैक्सटन इन 1476. 1476 में इधर का प्रिंटिंग प्रेस का नहीं है, वो तो विलिंगेरी है, वहां भी एक विलियम था. विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस का शुरुआत हुआ, तब से लेकर इंग्लिश बिकम एन ऑफिशियल एंड इंग्लिश स्टार्टेड द मेजर टर्निंग पॉइंट दैट हैपेंड इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. क्या शुरू करने से? विलियम कैक्सटन एक प्रिंटिंग प्रेस शुरू करने से. जियोफ्री चौसर्स The Canterbury Tales is a prominent example of Middle English literature. एक किताब है, उनका लेखक का नाम है किताब का नाम है The Canterbury Tales, showcasing the language growing richness and diversity. मतलब वहां से लेकर प्रिंटिंग प्रेस आया तो लिखने वाला लोग भी आ गए. अभी लोग इस भाषा को लिखने से पूरा का पूरा भाषा के एक नॉर्म एंड रेगुलेशन आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशन आ गया. कौन सी भाषा का? So this is the second step in history of English language. Third step, early modern English. The Renaissance, Reformation brought renewed interest in classical learning and languages, leading to incorporation of many Latin and Greek words into English. For example, when Martin Luther came out of the Roman Catholic Church, he told to many people, the problem is not with those people.
those leaders. The problem is with us only. Why? We are not interested to study the original language, Greek. We are lazy, to be frank. We are lazy and we are pointing them by saying they taught us these things. If we studied those things, we will read the Bible in Greek, then we will understand the meaning in Greek. So, ये जो युग है अर्ली मॉडर्न टाइम पे रेनेसांस रिफॉर्मेशन का समय, लैटिन ग्रीक वर्ड्स आल्सो इंक्लूडेड इन इंग्लिश. उदाहरण बैप्टिज्म, it comes from baptizo and it got transliterated, आवाज को लेकर और थोड़ा बातों को जोड़कर बैप्टिज्म करके लिखा. The invention of the printing press helped standardize spelling and grammar, while the work of writers such as William Shakespeare and the translation of the Bible into English, KJV सबसे पहले ट्रांसलेट किया गया, greatly influenced language development. बाइबल का अनुवाद करने से, और एक बड़ा लेखक ऑथर का नाम है विलियम शेक्सपियर, ऐसा वाला लोग, they started writing different books and translation work was already happening. By all this time, English started developing into the next level. King James version, एक राजा था, राजा ने बाइबल अनुवाद करने के लिए कुछ लोग को बुलाया. कहानी याद है? एक राजा था, बाइबल अनुवाद करेंगे करके कुछ लोगों को बुलाया. वो लोग ट्रांसलेशन करते आते 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 एक जगह पर आकर रुक गया. कलिसिया तो बपतिस्म बच्चे लोगों को देता है, ओरिजिनल ग्रीक में बपतिस्म. तब वो लोग जाकर राजा से पूछा, अभी हम इसका ओरिजिनल ट्रांसलेशन किया तो कलिसिया का नियम को हम तोड़ना पड़ेगा. So what they decided? राजा said, हम कलिसिया को भी चोट नहीं पहुंचाना है, बाइबल को भी चोट नहीं पहुंचाना है. So you transliterate it as baptism. भूल गया? क्लास नंबर 2 के लिए हमारा दूसरी सुलेमान सर ने बताया था. So that happened in this period only. Coming to modern English, that is 18th century, English had become more uniform with the dictionaries such as Samuel Johnson Dictionary, a dictionary of the English language, and we use Oxford Dictionary. I think 8th edition we are using. So many dictionaries came. The Industrial Revolution and expansion of British Empire further spread English across the globe. British लोग और बहुत जगह पर चले गया और इंग्लिश बढ़ते 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 गया. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज आना शुरू हो गया. सो इंडस्ट्रीज आने से भी इंग्लिश को और इज्जत भी मिलते गए. सो इंग्लिश स्टार्टेड डेवलपिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश एम्पायर एक्सपेंशन एंड इंडस्ट्रियल revolution. In the 20th and 21st centuries, English evolved into a global lingua franca. ग्लोबली ज्यादातर लोग यूज करने वाला एक भाषा में इंग्लिश 20-21st सेंचुरी में बदल गया. Influenced by technological innovation, we have all the technological thing and the title is written in even made in India करके लिखा है. कौन सी भाषा में? उनका पैर बाद में दबाओ. मेड इन इंडिया करके लिखा है इंग्लिश में. लेनोवो इसका पीछे लिखा है इंग्लिश में. वीवो इंग्लिश में. सैमसंग इंग्लिश में. क्यों? इंग्लिश हैज दैट मच पावर. बट मेड इन इंडिया करके लिखता है उसमें. Even though it is assembled in India, we have the alphabets in English. And today you are studying this topic in हम नहीं खरीदेगा. सबसे पहले बात ये है, हम नहीं खरीदेंगे. खुद का हिंदी बोलने वाला लोग उसको नहीं खरीदेगा. अगर वहां सैमसंग करके लिखे है तो कुछ लोग बोलते हैं ना सैमसंग को सैमसंग. मैं कहा था बहुत कम होगा. बिजनेस बिल्कुल गिर जाएगा. हमने निकाला था 259 में फ्रीडम मोबाइल करके. बोलने का जरूरत नहीं, उसके पहले बोल दिया फ्रॉड है. विच मीन्स हमारा भारत से कुछ निकाल कर हमारे लिए दिया तो सबसे पहले हम यही सोचेगा कुछ तो गड़बड़ है, सोच कर लेना. बाहर का ये तो
सुलेमान सर जाकर एलडी कंपनी का स्पीकर लिया, आहूजा का ले सकते थे, आहूजा मोस्टली दैट बिलोंग्स टू इंडिया, बट ही वेंट एंड ही ब्रॉट एलडी। पैसा तो लाखों पैसा खर्चा कर रहे, इंडिया का लेने के लिए थोड़ा सोच, डर। बाहर के तो लावा फोन, यू नो लावा फोन, माइक्रोमैक्स मोबाइल, लावा आपका ही है, लावा माइक्रोमैक्स सुना? देयर वाज अ टाइम माइक्रोमैक्स वाज द थर्ड पोजीशन इन इंडिया। नाउ आज भी लावा फोन, नया नया लावा फोन आता है, जैसा हम दुकान पे जाता है फ्रंट रो में कौन सा दिखाता है? एप्पल नहीं दिखाएगा, एप्पल दिखाएगा आपकी कार कितना बड़ा है उसके अनुसार, नहीं तो उसको पता है ये कुछ तो ईएमआई लेने के लिए आया, नहीं तो पूछने के लिए आया, देखने के लिए आया। वो बिजनेस वाला, मैं भी मोबाइल शॉप में करा था, एक इंसान आने से पता चलता है उनको कौन सा मोबाइल दिखाना है। सबसे पहले वीवो ओप्पो दिखाएगा, क्योंकि हम जो बातें सोच के आ रहा है वो उसमें है। उसके बाद रेडमी, उसके बाद हमने बोला अरे भैया थोड़ा ठीक वाला मोबाइल दे दो, सैमसंग दिखाएगा, बोलेगा ये वीवो में 20,000 में आने वाला ऑप्शन भी सैमसंग में नहीं है भाई, तो ये ले लो। समझ आया? सो वो बिजनेस वाला की ट्रिक है। वहां लावा फोन रखकर भाई तो ये ले करके बोला था, लावा साइड पर रखकर फिर जाके ढूंढेगा हम। अगर देर इज नो अदर ऑप्शन, इतना ही है पैसा, मोबाइल लेना है, तो हम क्या करेगा? लावा, और भी पूरी दिल से नहीं, आधा मन से ले लेगा। लेने से ही हमको पता चलता है कुछ दिनों के बाद क्या होगा। सो दैट इज फ्रॉम इंडिया, लावा इज फ्रॉम इंडिया। देन माइक्रोमैक्स अभी नजरों में भी नहीं है, चला गया, वो मर गया अभी, वो कंपनी बंद हो गया, क्योंकि इंडिया का था। नोकिया तो बाहर का था। नोकिया के क्या हो गया, उन्होंने मोबाइल का अंदर ऐसा एंड्रॉइड का नहीं निकाला, उन्होंने विंडोज वाला निकाला। वो बहुत वॉलपेपर लगाने में, शब्द लगाने में, इंसान का सोच के अनुसार वो लोग मोबाइल का नहीं बनाया, इसलिए बंद हो गया। है मोबाइल फिर कोई नहीं खरीदता है। दैट टाइम सैमसंग केम। हमारा टॉपिक वो नहीं था, ये था। सो इंग्लिश evolved as a lingua franca influenced by technical innovation, mass media, international communication, especially globalization। एक कंट्री दूसरा कंट्री के बीच में बातें चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कभी कभी हमारा प्रधानमंत्री वहां जाकर हिंदी में बोलेगा, वहां बैठने वाला सोच लोग कैसे बैठेगा, हाँ कुछ तो बोल रहा है। American English in particular has played a major role in shaping modern vocabulary and expression, especially अमेरिका का जो इंग्लिश है वो हमें इंग्लिश का एक नियम और उसका एक स्टैंडर्ड, उसके एक पोजीशन में इंग्लिश को लेके आने के लिए मदद किया। डोनाल्ड ट्रंप बात करने के समय वीडियो देखना, पॉइंट लिखना, वो क्या क्या बात कर रहे हैं, कितने लोगों से होगा ट्राई करके देखना। गो टू गूगल, यूट्यूब, डोनाल्ड ट्रंप स्पीच, वीडियो देखकर पॉइंट लिखना, कैप्शन डाल के नहीं, बिना कैप्शन। और उनका मुंह पे देखना कैसा कैसे घुमाएगा उसका फोटो को। आवाज तो आ रहे, इंग्लिश तो है, फिर भी हमको समझ नहीं। प्रभु का धन्यवाद, मुझे अभी समझ आता है। देन हाउ दिस लैंग्वेज हैज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड व्हाट आर द वेराइटीज वी हैव इन इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट, अमेरिकन इंग्लिश इज different, Indian English is. In our mobile, go to languages, you will find English UK, English US, English India. Today English is spoken over 1.5 billion people worldwide, either as a first or second language. For us that is first and second. Sir, which language we are talking, sir? English. Oh हाँ, आगे मत दौड़ो, मैं उसका पहली सेंटेंस ही पढ़ा। Either as a first or second language, it serves as the primary language of international business. हर एक कंट्री का इंटरनेशनल, बाकी सारी देशों से बिजनेस या कुछ व्यापार करने के लिए विच लैंग्वेज दे विल यूज,
Even Pakistan, even Sri Lanka, even Nepal, even India or even China, they will use English. Including American English, British English, Australian English, Indian English and African English. लेकिन English is the main. Each with distinct accents. मैं इंग्लिश बोलने का साउंडिंग सब कुछ अलग है. सिबिन सर अभी इंग्लिश बोलने का तरीका अलग है. सिबिन सर आपको कहाँ से पता चला? बाकी लोगों को पता है. एक बार अभी सिबिन सर के पास वीडियो कॉल करके बात करना, ऐसा लगा मतलब वहां का इंग्लिश का वो कल्चर में उनका आवाज और उनका ट्यूनिंग मिल गया. इधर तो ऐसा नहीं था. सिबिन सर जब हिंदी बोलते थे हमको हंसी आते थे. देन अकॉर्डिंग टू our ability or according to the culture and its influence, our vocabulary will change and the idioms will change. For example, एक ही बातें बोलने के लिए अलग अलग तरीका होता है. Can you give me that? In a formal language, how we will say? Could you please pass that to me? मतलब इंग्लिश सीख के जाते जाते उसका अंत समय तक होगा, लेकिन ओनली इंडिया का लोग और इधर का लोग ही ग्रामर को जोड़ते हुए बातें करते हैं. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इज द रूल फॉर इंग्लिश सेंटेंस. बाहर का लोग दे वोंट फॉलो एनी रूल्स. फॉर एग्जांपल, वी डोंट फॉलो एनी रूल्स फॉर हिंदी. हिंदी का कर्ता क्रिया कर्म पता है किसी को? वी नो बट वी वोंट स्पीक. पता है करके कौन बोल रहे, मतलब आता है फिर भी उपयोग नहीं करता है. सिंपल बात बोलने के लिए आप इसे से घूम के आकर इधर रुकता है, फिर बोलते हैं आता है. सो जस्ट लाइक वी लॉस्ट दैट वैल्यू फॉर आवर ओन लैंग्वेज, दे आल्सो लॉस्ट दैट. हम हमारा लैंग्वेज की इज्जत कैसे गिराता है वो लोग भी, लेकिन वो लोग गिराया करके हमको समझ आना है तो हम वो ग्रामर सीखना पड़ेगा. इसलिए उन लोगों के लिए कुछ फर्क नहीं है. वो लोग को सीखने की जरूरत नहीं है. In America, no school, no college is teaching Hindi. If you want to study, you go to America. You no need, the American will not come to India. समझ है यार? So no need to study Hindi. Simple बात है. Unless they come to India, they settle in India. किसी से शादी कर सेवा करने के लिए आया तो they will learn Hindi. इंग्लिश सीख रहे हैं. और सर दिल्ली में भी तो अफ्रीका के लोग पढ़ रहे हैं. अमेरिका से हिंदी सीख रहे हैं. व्हाट इज द पर्पस? अमेरिका के इंसान है इधर आने के लिए, ऐसे तो सीखना पड़ेगा क्योंकि इधर सेवा करना तो हिंदी सीखना है. मैं ये बोल रहा हूँ वहां का लोगों को इट इज नॉट ए नीड. Unless you have a special purpose, no need to even look into Hindi. कंक्लूजन, इतना सारे बातें हमने किया. जर्मनी ये सब सारी बातों का एक हिस्ट्री से इंग्लिश भी बनाया गया. इतनी सारी बातें किसी को समझ नहीं आया अभी बता देना. सो इंग्लिश का हिंदी का मैंने बताया. कल एक दिन गैप है. कल की बात, कल कौन सा दिन है? थर्सडे. कल फ्राइडे है. सैटरडे रूल नंबर 1 2 3. 1 2 3 कौन कौन है? 1 2 3 कौन है? सो वागड़ी है ना आपका. सो वागड़ी मराठी का इतिहास हम शनिवार को सुबह का क्लास में सीखेंगे. बोलो. जब नेपाली का आता है नेपाल में चला जाता है, जब इधर का आता है इधर आता है. हाँ, पोलोस के समान बनना चाहता है. सच में फ्रेंड.